lesson, weavers and iron smelters, factory owners. We were doing exercises of this chapter yesterday and few topics were left. So today I'm going to start with those topics. First of all, how did development of cotton industries in Britain affect textile producers in India? यहाँ से करना था ना? Wait. How did development, listen again, how did development of cotton industries in Britain affect textile producers in India? तो इसको कैसे आपको बनना है टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स पे ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रीज आई तो उसका इंडिया के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स पे क्या असर पड़ा. सबसे पहले तो विल राइट लाइक दिस. डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन had bad impact on the textile producers of India. First of all तो आप यही बताओगे ना फर्स्ट पॉइंट में कि इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स no had to compete with cheap textile of Britain, cheap industrial textile of Britain. Next आप ये बता दोगे कि इंडियन प्रोड्यूसर्स टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स had to pay custom duties while carrying their clothes to European markets. So due to these reasons, they lost their international markets. And आप ये बताओगे सेकेंड पॉइंट में कि इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स had to pay custom duties while carrying their clothes to European markets. And due to this, they lost their international markets. Indian markets were flooded with British products. British mill-made clothes flooded the Indian markets, and that was cheap as compared to Indian textile. So that's why people in India prefer to buy mill-made clothes of Britain. So in this way, Indian textile producers lost their local markets also. तो इस वजह से आप बता दोगे कि कैसे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को पहले तो एक चीप मिल मेड टेक्सटाइल से कम्पीट करना था. How they lost their international markets and how they lost their local markets. International में आप बता दोगे कि they had to pay custom duties while carrying their clothes to European markets. लोकल मार्केट्स में आप यही बताओगे कि इंडियन मार्केट्स जो थी इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश ना तो इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ दैट वाज चीप एज कंपेयर्ड टू इंडियन टेक्सटाइल. सो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट देयर लोकल मार्केट्स आल्सो. क्योंकि लोकल मार्केट्स भी जा चुकी थी. यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस कि these producers they didn't get raw material because finer variety of cotton was also exported to Britain. आप ये भी पॉइंट दे सकते हो. They didn't get raw material because finer variety of there was shortage of raw material in India, shortage of raw cotton in India because finer variety of cotton was exported to Britain. Is it clear? There was shortage of raw cotton in India because finer variety of cotton was exported to Britain. Depend upon your wish what to write. पहले तो चीप के साथ compete करना, then इंटरनेशनल मार्केट्स गई कस्टम ड्यूटीज के कारण, then लोकल मार्केट्स क्योंकि खुद की मार्केट्स किससे फ्लडेड है ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ से. और वैसे भी आपको पता अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर तो उन्होंने सस्ती चीज को ही खरीदना प्रेफर समझा. और कौन सा क्लोथ चीप था? ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ दैट वाज चीप एज कंपेयर्ड टू इंडियन टेक्सटाइल. तो एक तो ये. फिर वैसे भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन बिकॉज फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन. इज इट क्लियर? कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो. नेक्स्ट,
Why did Indian iron smelting industry, listen carefully, why did Indian iron smelting industry decline in 19th century? Yes, Jan, very good. Forest law एक heading बनेगा. Second, high taxes बन जाएंगे. Yes, they had to pay taxes. Third, very good. British iron products, very good. Indian markets flooded थे. जैसे टेक्सटाइल से इंडियन ब्रिटिश टेक्सटाइल से फ्लडेड थी, आयरन प्रोडक्ट से भी इंडियन मार्केट्स फ्लडेड थी. तो ये तीनों पॉइंट्स आप लिखोगे ना, एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट इज, आप यही हेडिंग बना के भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश हाउ टू डू. फर्स्ट आप लिख सकते हो फॉरेस्ट लॉज. आप हेडिंग बना के भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश हाउ टू डू दिस आंसर. आप फर्स्ट रीजन यही बता सकते हो, फॉरेस्ट लॉज, न्यू फॉरेस्ट लॉज हेडिंग बना सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम हियर. इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइंड इन 19th century. Indian iron smelting industry declined in 19th century due to following reasons. क्यों डिक्लाइन हुई? ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. अब रीजंस आप एक एक करके बताओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट न्यू फॉरेस्ट लॉज. हेडिंग बना के कर सकते हो, इस वे से लर्न करना ज्यादा इजी रहेगा. न्यू फॉरेस्ट लॉज. डिक्लाइन का क्या बन जाएगा? डिक्लाइंड. तो आपका फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा? न्यू फॉरेस्ट लॉज. अब इसमें आप लिखोगे by these laws colonial government did not allow the forest dwellers. By these laws colonial government did not allow the forest dwellers. Dwellers पता ना, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग. By these laws colonial government did not allow the forest dwellers to enter the forest areas. To enter the forest areas. Enter the reserved forest areas. To enter the reserved forest areas. By these laws, हमने लिखा है न्यू फॉरेस्ट लॉज. By these laws, colonial government did not allow the forest dwellers to enter the reserved forest areas. Now it became difficult for the iron smelters to collect. Now it became difficult for iron smelters to collect wood for charcoal. To collect wood for charcoal and iron ore. Now it became difficult for the iron smelters to collect wood for charcoal and iron ore. Sometimes they entered these forests. Sometimes they tried to enter these forests, but they got punishments by the colonial government. Sometimes they tried to enter these forests, but they got punishments, strict punishments from the colonial government. कई बार वो ट्राई भी करते थे इतना एंटर होने की, but they got strict punishments from the colonial government. उन्हें colonial government से punishment मिल जाती थी. नेक्स्ट आप बता सकते हो, हाई टैक्सेस. हेडिंग बना सकते हो आप. हाई टैक्सेस. हाई टैक्सेस. In some areas
in some areas colonial government gave permission to the people to enter the forest areas, but in return, in some areas colonial government gave permission to, आप iron smelters लिख दो, people की जगह iron smelters लिख दो. In some areas government gave permission to iron smelters to enter the forest areas, because we are doing about iron smelters. In some areas government gave permission to iron smelters to enter the forest areas, but in return they had to pay high taxes to the government. In return, they had to pay high taxes to the government. So due to this, their income reduced. उनकी इनकम ही डाउन चली गई ना, क्योंकि उन्हें अब टैक्सेस देने थे. कुछ एरियाज में आयरन स्मेल्टर्स वर अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट एरियाज, but they had to pay high taxes in return, and due to this their income अब उनके लिए प्रॉफिटेबल तो रहा ही नहीं ना ये वाला ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज इंडियन import from Britain, heading बना दो, import from Britain. अब इसमें आप बता सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया imported East India Company in India imported iron and steel from Britain. East India Company in India imported iron and steel from Britain. So Indian markets were flooded with British iron and steel. So Indian markets were flooded with British iron and steel, and industrialists in India used British iron and steel for making tools, utensils, etc. East India Company in India imported iron and steel from, कहाँ से मंगाती थी वो? Britain. Indian markets were flooded with, किससे flooded थी? British iron and steel, and industrialists in India used British iron and steel for making utensils, tools, etc. And due to this, there was no demand of iron produced by local smelters. So due to this, there was no demand of iron produced by local smelters, Indian smelters. अगर local ही लिखना तो Indian smelters. So there was no demand of iron that was produced by local smelters या फिर Indian smelters, आप कुछ भी कह सकते हो. Due to these reasons, हम कहेंगे iron smelting industry down गई थी. अब ये clear है? Because we have written in the beginning ये line, Indian iron smelting industry declined in 19th century due to following reasons. अब reasons आपने बताने हैं. Reasons कौन-कौन से थे? First is न्यू फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ ही अलाउ नहीं करते थे कि स्मेल्टर्स उधर जाएं और क्या कलेक्ट कर सके? वुड फॉर चारकोल एंड आयरन ओर. तो एक तो ये प्रॉब्लम आई है ना. नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट ने लॉ भी किया ही नहीं कुछ एरियाज में,
बट इन रिटर्न दीज पीपल हैड टू पे हाई टैक्सेस, तो उनकी इनकम क्या हो गई, डाउन। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से मंगवाती थी आयरन एंड स्टील, इंडियन मार्केट किससे प्रेजेंट थी, ब्रिटिश आयरन एंड स्टील। तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के भी थे वो कौन सा आयरन एंड स्टील यूज कर रहे थे, जो ब्रिटेन से आता था फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। तो किसके आयरन की डिमांड नहीं थी, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स या फिर इंडियन स्मेल्टर्स, उसकी डिमांड नहीं थी, तो वो डाउन नहीं जाना था सारा। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स, अगर ये क्वेश्चन को आप हिंदी में समझ लेते हो ना कि इसमें ये लिखना है, तो मुझे नहीं लगता ये आपको कहीं से क्रैम करना है, यू कैन राइट योरसेल्फ, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन इज व्हाई डिड इंडियन आयरन, oh sorry you have done this, what problems did Indian textile industry face in the early years of its development। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसके अर्ली इयर्स में आई, जब वो सेटअप हुई तो अर्ली इयर्स में उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले तो compete, you can write same answer which you have done before के compete करना था किससे, ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ, ठीक है ना। पहले तो कंपटीशन, सेकंड कस्टम ड्यूटीज, अगेन सेम। नो, आप ऐसे नहीं कह सकते हो टेक्सटाइल इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ उधर आपने क्योंकि प्रोड्यूसर्स के बारे में लिखा है, इधर आपका आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट यही बताओगे कि इंडिया में आप यही बताओगे सबसे पहले कि उन्हें compete करना था किसके साथ, ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ के साथ, दैट वाज चीप। सेकंड, और क्या बताओगे, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या नहीं मिल रहा था, दे डिडंट गेट रॉ मटेरियल बिकॉज रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन बाय ईस्ट इंडिया। वो इधर से जितनी फाइनर वैरायटी कॉटन होती थी ना, किधर भेज देती थी, सारी ब्रिटेन। सारा रॉ मटेरियल किधर जा रहा था, रॉ कॉटन कहना अपने, रॉ कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो इस वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल ही नहीं मिला। नेक्स्ट, टेक्सटाइल, हमारी टेक्सटाइल की डिमांड कम हो रही थी इन लोकल मार्केट्स एंड इन इंटरनेशनल। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देना आपने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी हमारी, उसको एक और प्रॉब्लम आई, कौन सी, देयर वाज नो डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन लोकल मार्केट बिकॉज लोकल मार्केट्स वर फ्लडेड विद ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ, ठीक है ना। एंड इन इंटरनेशनल मार्केट्स our textile producers had to pay custom duties, so that's why they lost their international markets also. So same question you can write, same answer you can write here, depend upon your choice आपने कैसे करना है, same you can write here. Next is there any problem in this question, what problems did Indian textile industry face in the early years of its development, क्या problems आई उसे। सबसे पहले तो कंपटीशन, सेकंड रॉ मटेरियल ही नहीं था, क्या नहीं था उनके पास, थर्ड हाँ उनके डिमांड इंडियन मार्केट में उनके क्लोथ की डिमांड नहीं थी। वो तो बाद में स्वदेशी मूवमेंट या फिर आप कहो कि गांधी जी की मूवमेंट्स बाद में आई, नॉन कॉपरेशन, तो उन दिनों डिमांड बढ़ी इंडियन टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल की डिमांड इंडिया में बढ़ी। बट अगर हम रेगुलर रूटीन में बोल रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश, तो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड नहीं थी, लोकल मार्केट्स में नहीं थी बिकॉज ये एक्सपेंसिव थी, जबकि ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ वाज चीप तो उसकी डिमांड थी, लोकल मार्केट में डिमांड नहीं थी, फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं थी बिकॉज इन्हें कस्टम ड्यूटीज देनी होती थी। वेरी गुड, जैसे मर्जी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, दे डिडंट गेट रॉ मटेरियल, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी,
ऐसे भी तो आ सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को एंड व्हाट हेल्प्ड इट टू एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टिस्को की फुल फॉर्म पूछ के साथ में ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दिनों में टिस्को जो थी उसका कैसे उसकी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई, तो ये बताना है हमें। आप पहले तो ये बताओ कि ब्रिटेन से ही आता था आयरन एंड स्टील, है ना, टिस्को। तब टिस्को स्टार्ट तो हुई 1912 में, है ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने से टिस्को को फायदा ही हुआ। ब्रिटेन किसमें बिजी हो गया? वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन अपनी कंट्री में बिजी हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, तो ब्रिटेन से जितनी सप्लाई आ रही थी ना आयरन एंड स्टील वो बंद हुई, वो बंद हो गई। अब रेलवे डिपार्टमेंट किसकी तरफ गया फॉर आयरन एंड स्टील? टिस्को की तरफ। अब टिस्को के आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। जब तक वार का एंड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1918, जब तक ये वार एंड हुई टिस्को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तब सेटअप हो चुकी थी। तो इसमें हमने ये सारा बताया है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप बताओगे फॉलोइंग things help Tisco to expand steel production during the First World War. अब आप फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे, पहले तो आप उसका ईयर ऑफ सेटअप लिखो। Tisco was established in 1912 and in those days इसी के साथ ही Tisco was set up in 1900 and in those days India was importing iron and steel from Britain. India was importing iron and steel from Britain. But when the First World War, next point, First World War started, Britain. But when the First World War started, Britain got busy in the war and due to this import came down. Britain got busy in the war and due to this import came down. Next point, Indian Railways turned to Tisco for supply of rails. Tisco had to produce shells and carriage wheels for the war. Tisco had to produce shells and carriage wheels for war. By 1919, colonial government was buying 90% of steel manufactured by Tisco. देखो 90% उन्होंने टिस्को से लेना शुरू कर दिया. By 1919, colonial government started buying 90% of steel from Tisco. So Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. So Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. इसमें हमने क्या बताया कि अर्लियर जब हमने कहा कि टिस्को सेटअप कब हुई 1900
बट उन दिनों एक प्रॉब्लम थी, कहां से आ रहा था आयरन एंड स्टील? ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन किस में बिजी हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ब्रिटेन किस में बिजी हो गया? अब ये इंपोर्ट क्या हो गया? डाउन चला गया, अब नहीं आ रहा था इंडिया में। अब रेलवे वाले किस तरफ आए? टिस्को की तरफ, फॉर स्टील। अब टिस्को को क्या प्रोड्यूस करने थे? शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वार। 1919 में ब्रिटेन ने कितने परसेंट स्टील टिस्को से लिया? 90%। So due to these reasons, Tisco became largest steel industry within the British Empire. Tisco एक बड़ी सी इंडस्ट्री बन गई within the British Empire. Now, is there is any problem regarding these topics? Is there any problem, students? Students who are sitting online, if there is any problem, then raise your hand. Okay, thank you, bache. Kashish is saying no problem. So all are saying no problem. Thank you.